Hey you guys, my name is Manish Anand and welcome back to a brand new day, a brand new week and a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we kickstart today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Shahid Kapoor finally reacts to photo of him kissing ex-girlfriend Kareena Kapoor going viral. Bawal director Nitesh Tiwari breaks silence on why he chose to show Hitler World War II in film. मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हम खुश थे या दुखी थे, जो हो गया उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। शाहिद कपूर ने 2004 की MMS कंट्रोवर्सी पे तोड़ी चुप्पी। जब उनका और करीना का इंटीमेट वीडियो लीक हुआ, वो टूट गए थे। दाद देनी पड़ेगी आपके सवाल की। शाहिद एंड करीना ने ऑलमोस्ट 4 साल डेट करने के बाद 2006 में ब्रेकअप किया फॉर रीजंस वी आर वेरी श्योर अबाउट। The two worked together in films like Fida, Chup Chup Ke, 36 Chinatown, Milenge Milenge and of course the iconic rom-com Jab We Met. लेकिन जब वो डेट कर रहे थे, उनकी रिलेशनशिप में कंट्रोवर्सीज की कमी नहीं थी। Here's the story. 19 साल बाद शाहिद कपूर ने फाइनली उनकी और करीना के MMS पर बात की है। ये कनेक्शन कहाँ निकली, गाड़ी कहाँ से और पहुंची कहाँ? शाहिद एंड करीना वर इन अ सीरियस रिलेशनशिप फॉर क्वाइट सम टाइम और इसी दौरान उनका एक MMS लीक हुआ था जहां कुछ यंगस्टर्स ने दोनों को किस करते हुए रिकॉर्ड किया। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो पब्लिक डोमेन में लीक हो गया और इसकी वजह से शाहिद और करीना को बहुत एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। अरे पप्पी छोड़ के कोई और सवाल पूछे, एक्टिंग भी की इस पिक्चर के अंदर लोगों ने। Though the two were dating and everyone knew कि वो कपल थे, उनके इस PDA को बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस मिले थे। Shahid has finally commented on this embarrassing episode in an interview, जहां उन्होंने कहा कि जब ये स्कैंडल हुआ, वो बहुत अपसेट थे। एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए शाहिद ने बताया, I was destroyed at that time. I was a 24-year-old kid and I felt like my privacy had been invaded and I could not do anything to protect myself. So I was a mess wondering what's happened, what's going on. शाहिद एडेड कि जब कम उम्र में ऐसे एम्बैरेसिंग बातें होती हैं तो इंसान समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए और खुद को कैसे संभाला जाए। He said, of course it affects you a lot and at that age especially. You don't even know your feelings and you're figuring out how to be with a girl you're dating. You're both actors in different places and then this happens. शाहिद also added कि आजकल celebs भी ज्यादा aware और alert हो गए हैं, so ऐसे incidents उतने common नहीं है। शाहिद ने अपनी फिल्म कबीर सिंह की एंड्यूरिंग कंट्रोवर्सी पर भी कमेंट किया और कहा कि वो फिल्म में दिखाई गई फिजिकल अब्यूज को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो खुद इससे गुजर चुके हैं। अपनी चाइल्डहुड के बारे में बात करते हुए शाहिद ने कहा, I've seen physical abuse as a child. I understand what you're talking about. But it was just a dysfunctional love story between a very simple girl and a very talented, brilliant, aggressive, disturbed guy. And stuff like that happens on a day-to-day basis. शाहिद ने फाइनली इन सेंसिटिव मामलों पे बात की, इसकी हम दाद देते हैं। Here's hoping कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहें। It is not just about Hitler. There are many more things which you may not have seen in the trailer. बवाल के ट्रेलर में वरुण धवन और जानवी कपूर क्यों कर रहे हैं हिटलर और वर्ल्ड वॉर 2 की बातें? डायरेक्टर नितेश तिवारी ने किया कुछ खुलासे। It is not just about Hitler. There are many more things which you may not have seen in the trailer. Guys, वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज दुबई में हुआ विद अ ग्रैंड इवेंट जहां मूवी के मेकर्स और स्टार्स सभी मौजूद थे। The movie seems to be an unusual story with historical elements in it and we can't wait to see it. Here's the story. बहुत इंतजार के बाद वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल फाइनली रिलीज हो रही है, but the movie will stream directly on an OTT platform.
फिल्म की अनयूजुअल कहानी और इंटरनेशनल हिस्ट्री से इसके कनेक्शन को देखकर मेकर्स ने इसे डायरेक्टली एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान डायरेक्टर नितेश तिवारी ने इसकी कहानी के बारे में और भी डिटेल्स शेयर किए। कई लोग ये देख के सरप्राइज थे कि फिल्म में वर्ल्ड वॉर 2 के रेफरेंसेस हैं और एडोल्फ हिटलर का नाम कई बार मेंशन हुआ है। आखिर क्यों उन्होंने इंटरनेशनल हिस्ट्री के इस एस्पेक्ट को हाईलाइट करने का फैसला किया? नितेश जी ने अपने क्रिएटिव प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए कहा, When you start writing the arc of your characters, you go back and look at the events and the incidents which kind of can play an important role in the overall arc of that character and the relationship in general. And it is not just about Hitler, there are many more things which you may not have seen in the trailer, but every incident has been very carefully chosen, which can have an impact on the overall arc. नितेश जी एडेड कि वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसके कई पहलू हैं। हर पहलू को एक फिल्म में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, Because World War II is humongous, there is so much which has happened. You cannot probably take everything. So you have to only pick and choose things which probably impact the journey of your characters, and that is precisely why it has been taken. बवाल जुलाई 21 को डायरेक्टली एक OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होगी एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वरुण धवन एंड जानवी कपूर ऑन स्क्रीन टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। When you watch Bawal, hopefully, fingers crossed, as always, is what I believe in. We can only hope that, again, it will not just entertain you, but it will also make you take a pause, rethink about your life, hopefully, probably reset a few buttons about the priorities of your life in general. And that probably, if your audience can connect with your story at that level, I don't see there is no reason why it should not do Bawal again. रणवीर सिंह ने शहर से दूर वाइफ दीपिका पादुकोण के साथ अपना जन्मदिन मनाया और कुछ दिनों का ब्रेक लेने के बाद वो मुंबई लौट आए हैं। रणवीर thanked his fans for all the love and good wishes they sent him on his birthday. रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं और अपने करियर के साथ बहुत बिजी होने के बावजूद दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का कोई मौका मिस नहीं करते। लुक्स लाइक रणवीर के जन्मदिन और उनकी अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को सेलिब्रेट करने दीपिका और रणवीर मुंबई से अलीबाग गए, जहां उन्होंने रिपोर्टेडली एक खूबसूरत बंगलो खरीदा है। शायद दोनों लव बर्ड्स को शहर से दूर अकेले में कुछ रोमांटिक पल बिताने थे। कई लोग सरप्राइज थे कि दीपिका ने रणवीर को सोशल मीडिया पे विश नहीं किया, बट जब बर्थडे बॉय आपके साथ हो उन्हें सोशल मीडिया पे विश क्यों करना। थैंकफुली रणवीर ने सबके सवालों का जवाब दे दिया और अपनी वाइफ के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर किया जिसमें दोनों ही समुंदर किनारे एक साथ मुस्कुरा रहे हैं। रणवीर शेयर्ड अ मोनोक्रोम पिक्चर जहां वो और दीपिका दोनों ही मौसम का मजा ले रहे हैं एंड इट लुक्स लाइक द फोटो वाज टेकन एट अ बीच साइड स्पॉट और ऑन द बोट ट्रैवलिंग टू और बैक फ्रॉम अलीबाग। रणवीर ने सबको जन्मदिन के विशेस के लिए भी थैंक किया और लिखा, Thank you all for the loving birthday wishes. रणवीर एंड दीपिका को उनकी गाड़ी में स्पॉट किया गया as they returned from Alibag and it looks like the two had a good break together after being very busy with their work commitments. आगे आगे खिड़की झगड़ा होगा उधर। अरे तो ये बाजू आ जाओ ना, ये बाजू आ जाओ बाबा, इधर ही ले ले ना, इधर 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 ये इस साइड यहीं पे। हाँ तुम लोग उधर आ जाओ बस। चलो ये बाजू आ जाओ, चलो हाँ
बाबा बाबा इधर 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 सामने और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। कैटरीना कैफ के मुंबई लैंड करते ही एयरपोर्ट पर हुआ ये केओस बन गया है बड़ी हेडलाइन, क्योंकि कैटरीना के मॉब्ड होने पर उनके स्टाफ को करना पड़ा फैंस को पुश। जी हां, जब बात होती है बी टाउन के ऐसे सेलेब्स की जिनके साथ एक सेल्फी क्लिक करने की चाहत हर एक को होती है, तो उन सेलेब्स की लिस्ट में कैटरीना का नाम टॉप स्टार्स में आता है। और फिर फैंस के साथ सेल्फी का सेशन कभी-कभी इन सेलेब्स पर ही भारी पड़ जाता है। फिर आप लोग धक्का मारते हो? नहीं धक्का नहीं मारो मैडम। क्या कैटरीना के साथ भी ऐसा ही हुआ है? साथ ही फैंस और नेटिजन्स इस एपिसोड पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे। कैटरीना कैफ NYC में हस्बैंड विकी कौशल के साथ वेकेशन पर थी, जिसकी झलक पहले ही सामने आ चुकी है। और अब जैसे ही कैटरीना कैफ वापस मुंबई पहुंची, क्रेजी फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ऐसा हुआ जब फैंस ने अपनी फेवरेट स्टार के साथ सेल्फी क्लिक करना स्टार्ट किया। देखते ही देखते फैंस की भीड़ बढ़ती गई और फिर कैटरीना को रेस्क्यू करने उनके पर्सनल स्टाफ को आगे आना पड़ा। वायरल वीडियो में कैटरीना का स्टाफ फैंस को पुश करते हुए भी नजर आ रहा है। तो बस जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आया, तुरंत वायरल हो गया। फैंस और नेटिजन्स कैटरीना के साथ हुए इस इंसिडेंट पर काफी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, I know it comes with the job, but it must be so creepy to have all these men just walk around you. तो वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, No matter what people think about her, fact is she has a set standard for herself and cemented herself in the Indian dictionary. What more can a star do? वर्क फ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ फोन भूत में नजर आई थी और अब जल्द ही फैंस उन्हें श्री राम राघवन की मैरी क्रिसमस में विजय सेतुपति के साथ देखेंगे। And just like that, we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.